اور خبر تفصیل سے سپریم کورٹ میں ایودھیا تنازع معاملے کی آج کی سماعت میں مسلم فریق کے وکیل راجیو دھون کی جانب سے دلائل پیش کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ راجیو دھون نے مسجد کے مرکزی گنبد کے نیچے 1839 سے بھگوان رام کی مورتی ہونے کی بات سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ 1949 میں دھوکے سے مسجد کے مرکزی گنبد کے نیچے بھگوان رام کی مورتی رکھی گئی تھی۔ آج کی سماعت میں اور کیا کچھ خاص رہا، تفصیلی جانکاری دی ہمارے دہلی نمائندے سوشیل پانڈے نے۔ جنم بھومی ایودھیا وواد معاملے میں آج کی سنوائی پوری ہو گئی۔ مسلم پکشکاروں کی طرف سے پیش وکیل راجیو دھون نے اپنی بحث کی شروعات کرتے ہوئے کہا کہ مکھ گنبد کے نیچے 1839 کی جو بات چیت کہی جا رہی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ 1949 میں وہاں پر چھل سے جو مین استھل ہے بھگوان شری رام کی مورتی کو رکھا گیا۔ جسٹس اشوک بھوشن اور راجیو دھون میں آج معاملے کی سنوائی کے دوران تھوڑی سی نوک جھوک بھی دیکھنے کو ملی۔ دراصل جسٹس اشوک بھوشن نے راجیو دھون سے 1839 کے ایک گواہ کے اس بیان کو پڑھنے کے لیے کہا جس میں اس گواہ نے یہ بیان دیا تھا کہ مکھ گنبد کے نیچے بھگوان رام کی مورتی کو اس نے دیکھا تھا۔ لیکن راجیو دھون اگر اس بیان کو پڑھتے تو اتنے دنوں سے جو وہ بات چیت کر رہے ہیں، جو بحث وہ کر رہے ہیں، ان کے بحث پر پانی پھر جاتا۔ اس پر راجیو دھون نے اشوک بھوشن پر ہی سوال کھڑے کر دیے۔ حالانکہ جب دونوں پکشوں کی طرف سے اس پر ناراضگی جتائی گئی تو راجیو دھون نے کورٹ سے معافی مانگی، لیکن آج راجیو دھون نے اپنے بحث میں کورٹ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ مکھ گنبد کے نیچے شری رام کی مورتی 1949 میں چھل سے رکھی گئی تھی اور 19ویں شتابدی میں شری رام جنم بھومی کے ٹائٹل کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا۔ یعنی کہ یہ صاف ہے کہ بار بار راجیو دھون سپریم کورٹ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صدیوں سے جو مکھ گنبد ہے وہ مسجد کا استھان رہا ہے، نہ کہ شری رام جنم بھومی کا۔ حالانکہ لنچ کے بعد آج معاملے کی سنوائی ہو نہیں پائی کیونکہ مکھیہ نیادھیش جو معاملے کی سنوائی کر رہے تھے ان کا سواستھ ٹھیک نہیں تھا۔ امید یہ لگائی جا رہی ہے کہ آگے کی سنوائی کل سپریم کورٹ دوبارہ کرے گا۔ کیمرامین گورو گیری کے ساتھ سوشیل پانڈے، نیوز 18 دلی۔ تبریز انصاری ہجومی تشدد معاملے میں پولیس کے ذریعے سپلیمنٹری چارج شیٹ میں قتل کی دفعہ کو شامل کیے جانے کو مقتول کی بیوہ نے ناکافی قرار دیا۔ تبریز انصاری کی بیوہ نے چارج شیٹ کے مطابق ملزمین کو موت کی سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ تبریز انصاری کی بیوہ سے خاص بات چیت کی ہمارے نمائندے نوشاد عالم نے۔ ہجومی تشدد کے شکار تبریز انصاری کے معاملے میں پولیس نے یو ٹرن لیا ہے۔ پہلے جس چارج شیٹ میں 302 کا مقدمہ ہٹا کر 304 کیا گیا تھا، اب پھر سے سپلیمنٹری چارج شیٹ میں 302 کو شامل کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت تبریز انصاری کی بیوہ شائستہ پروین اور ان کے تبریز انصاری کے چچا مسرور عالم موجود ہیں۔ ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ اس چارج شیٹ کے بعد ان سے کس طرح کی انصاف کی امید نظر آ رہی ہے۔ چارج شیٹ میں 302 کا مقدمہ جو ہے ملزمین کو کے خلاف جو ہے پھر سے داخل کیا گیا ہے، کتنا انصاف ملنے کی امید لگ رہی ہے آپ کو؟ امید ہے انصاف ملنے کی۔ اور کیا چاہتی ہیں آپ اس کے لیے؟ انصاف چاہتے ہیں، بس مجرموں کو پھانسی کی سزا ہو، بس یہی چاہتے ہیں۔ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تبریز انصاری کے خلاف جو ان لوگوں نے کہا کہ چوری کا الزام لگایا تھا، یہ کہاں تک درست ہے اور آپ کو اب تک سرکار سے کیا کیا مدد ملی ہے؟ کچھ بھی مدد نہیں ملی ہے سرکار سے۔ تبریز انصاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بائک کی چوری کیا تھا، اس کی پاداش میں اس کو جو ہے وہ پیٹا گیا، اس کو پکڑا گیا۔ غلط تھی یہ سب، ساری جھوٹی باتیں، سب غلط باتیں۔ اب جو ہے تبریز انصاری کے معاملے میں کس طرح کی جانچ کا جو ہے آپ مطالبہ کریں گے سرکار سے؟ CBI جانچ کی۔ تو شائستہ پروین اور ان کے تبریز انصاری کے چچا مسرور عالم کا یہ واضح طور پہ کہنا ہے کہ یہ ظالمانہ حرکت اس کے ساتھ کیا گیا ہے، جس کے پاداش میں اس تبریز انصاری کی موت واقع ہوئی ہے، اور انہیں پولیس پر اعتماد جو ہے ضرور بحال ہوا کہ 302 کا مقدمہ پھر سے جو ہے داخل کیا گیا، اور یہ جو ہے حکومت پہ بھی جو انصاف کی امید نظر آ رہی ہے۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عدالت اس سلسلے میں کس طرح کا انصاف سامنے آتا ہے۔ کیمرامین سنت کے ساتھ نوشاد عالم، نیوز 18 کھرسامہ، جھارکھنڈ۔ مغربی بنگال اسمبلی میں گزشتہ ماہ پیش کیے گئے موب لنچنگ بل پر تنازع شروع ہو گیا ہے۔ کانگریس اور CPM نے ترنمول حکومت پر بل کے نام پر عوام کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا۔ آج کانگریس و CPM کے وفد نے گورنر کو میمورنڈم دیا۔
गवर्नर ने इस बिल पर असेंबली कमेटी से रिपोर्ट मांगी है। असेंबली में पेश होने वाला लिंचिंग बिल तनाज़े का शिकार है। अपोजिशन जमातों का इल्जाम है कि असेंबली में इस बिल के ताल्लुक से जो कॉपियां मेंबरान असेंबली को पेश की गई, जो गवर्नर को भेजी गई और जो कुछ इस बिल के ताल्लुक से असेंबली में पढ़ा गया, वो इन दोनों में तजाद है। यही वजह है कि रियासती गवर्नर ने भी हुकूमत से रिपोर्ट मांगी है। सवाल ये उठता है कि एक ऐसे वक्त में जब इस बिल की जरूरत को महसूस की जा रही थी, आखिर हुकूमत ने बगैर किसी जांच के इसे असेंबली में किस तरह पेश कर दिया। बहरहाल देखना यह है कि गवर्नर को जो रिपोर्ट भेजी जाएगी, जो हुकूमत की तरफ से इस बिल के ताल्लुक से रिपोर्ट भेजी जाएगी, उसमें हुकूमत क्या कुछ सफाइयां पेश करती है। कैमरामैन मानुष के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने मीडिया से खिताब किया। ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह को उन्होंने एक खत सौंपा है जिसमें असम में एनआरसी के ताल्लुक से तशवीश का इजहार किया गया है। कल ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। लेटर मैंने हैंडओवर किया है और मैंने बोला कि एनआरसी के लिए असम में जैसे 19 लाख लोगों को नाम बात किया है, उसमें बंगाली स्पीकिंग बहुत है, हिंदी स्पीकिंग भी है, गोरखा भाई बहन भी है। कि कल प्राइम मिनिस्टर का तो एनआरसी सब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर में डिफरेंट सब्जेक्ट अलग किया। आज एनआरसी के लिए हम थोड़ा बातचीत किया है और बॉर्डर एरिया है, बाद बाकी एरिया का बारे में जो बातचीत हुआ है वही बातचीत हुआ है। असम में हुए एनआरसी के बाद अब मगरबी बंगाल के लोगों में एनआरसी को लेकर खौफ देखा जा रहा है। मुर्शिदाबाद के एक नौजवान मिलिंद मंडल ने एनआरसी के खौफ और कई दिनों तक दफातर के चक्कर काटने के बावजूद दस्तावेजात की गलतियां ठीक न करवा पाने पर मौत को गले लगा लिया। ऐसे में जमीयत उलमा हिंद मगरबी बंगाल ने एनआरसी मामले में शहरियों को दस्तावेजात की फराहमी व दीगर मसाइल के हल के लिए लीगल सेल कायम करने का फैसला किया है, जो रियासत भर में बेदारी मुहिम चलाएगा। और लाजिम बात है कि बंगाल में भी ताकत पैदा है। इस सिलसिले में हम ये चाहते हैं लोग इसको समझे क्या करना है, कानून क्या करना है, फ्यूचर क्या होना चाहिए। तो इस सिलसिले में हम लोग इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग इस सिलसिले में एक एडवाइजरी कमेटी, जिसमें जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी, अहले हदीस, बरेली मकतब, इस तरह पेपर मिली काउंसिल और भी जो आइमाए किराम सबको जोड़ करके और साथ ही साथ बिरादर वतन के अच्छे लोग उनको नहीं जोड़े, हाई कोर्ट के लैंडेड एडवोकेट उनको भी रखें, एक एडवाइजरी कमेटी जो पूरे बंगाल में। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुल्क में एनआरसी को जरूरी करार दिया है। उन्होंने कहा कि एनआरसी से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दरअंदाजों के खिलाफ एक कार्रवाई है, न कि मुल्क के अवाम के खिलाफ। जो अवैध घुसपैठी होते हैं या अवैध नागरिक हैं, उनका जो जनसंख्या विस्फोट है, उस जनसंख्या विस्फोट को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, कोई देश नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमारे भारत में बहुत बड़े पैमाने पर अवैध नागरिकों और अवैध घुसपैठियों का जनसंख्या विस्फोट है, और एनआरसी जो है वो ऐसे ही अवैध नागरिकों के जनसंख्या विस्फोट पर को कंट्रोल करने का एक मजबूत हथियार है। जो लोग इसमें अवैध रूप से नागरिक हैं हमारे देश में, उनको किसी तरह से न डरने की ज़रूरत है, न पैनिक की ज़रूरत है। निश्चित तौर से जो अवैध है उनकी पहचान होगी, और पहचान के साथ साथ उनको जो है उसका रास्ता दिखाया जाएगा। मुल्क में मसाजिद से मुसलमानों के मसाइल को हल किया जाएगा। दिल्ली में मारूफ मिली व समाजी तंजीमों की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। मीटिंग में तमाम मसालिक के दानिशवरों ने शिरकत की और एक नई तंजीम की तश्कील का ऐलान किया। सचर कमेटी की रिपोर्ट में वाज़ेह हो गया था कि मुल्क में मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हैं। ऐसे में कई महीनों की कोशिश के बाद मुसलमानों के तमाम मसालिक के दानिशवर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए और मस्जिदों से मुसलमानों की माशी, तालीमी और दीगर परेशानियों को हल किए जाने पर मुहर लगाई। मीटिंग में एक नई तंजीम की तश्कील का ऐलान किया गया, जिसका नाम
ऑल इंडिया डेवलपमेंट काउंसिल रखा गया, जो मस्जिद वन मूवमेंट को आगे बढ़ाएगी। इसके तहत मुल्क के तमाम इलाकों में जिला सतह की कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। हालांकि ये काम आसान नहीं है, क्योंकि मुल्क में कितनी मसाजिद हैं इसका सही डेटा मौजूद नहीं है। लेकिन कसीर मुस्लिम आबादी वाली ऐसी रियासतें जहां मुसलमान माशी और तालीमी सतह पर कमजोर हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। यह आज हम लोग जो ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल, जो इंडिया भर के पूरा मुस्लिम्स इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेशनल्स, तंजीमें के जिम्मेदारन और आलिम, उलमा इकराम सब लोग मिलके एक तंजीम कायम किया है, जिसका नाम रखा गया ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल। और इसका अंडर में एक मस्जिद वन मूवमेंट आने वाला है इंशाल्लाह, जिसमें जो है हम लोग सारा इंडिया का मस्जिदों को नमाज के साथ साथ कौम का और नेशन का डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए भी उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो वही हमारा मेन इरादा है, ताकि आगे जाके इंडिया का डेवलपमेंट के लिए भी और मिल्लत का डेवलपमेंट के लिए भी इसमें कंट्रीब्यूशन मिले। कि मसाजिद के सिलसिले में जो मुस्लिम डेवलपमेंट का मसला है, तो ये असल में मुल्क की भलाई और इंसानियत की भलाई का काम है कि कैसे जुड़ें, जैसे किसी भी अच्छे काम को मौसर अंदाज में कर सकें। और वो तय किया कि मस्जिद मूवमेंट से हम काम का आगाज करेंगे, मस्जिद को से पूरी मोहल्ले को जोड़ेंगे और उसमें तमाम डाटास को कलेक्ट करके हर फैमिली को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे मस्जिद से। और उसके साथ साथ ये करेंगे कि अगर जो कमियां हैं, मिसाल के तौर पर किसी घर के अंदर वोटर आईडी नहीं बना, आधार कार्ड नहीं बना, कोई बुनियादी चीज़ मौजूद नहीं है, कोई गरीब है, कोई यतीम है, कोई बेवा है, उसके मसाइल हैं, तो ये तमाम कामों को करने के लिए मस्जिद मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। उसमें इस बात का भी इम्कान है कि जो इमाम मसाजिद हैं उनके खुतबात में कम्युनिटी के एम्पावरमेंट के लिए क्या काम होना चाहिए, ख़वातीन के एम्पावरमेंट के लिए क्या काम होना चाहिए, बच्चों की तालीम तरबियत के लिए क्या काम होना चाहिए। ये पहला प्रोजेक्ट है जिसको हमने टेकअप किया है। इसके बाद पूरी जो कम्युनिटी को और अवेयर कराना है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ के लिए, बहुत सारी रिक्वायरमेंट के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें हर वक्त ज़रूरत पड़ती रहती है। और उसी के साथ साथ फिर उनको एजुकेट भी करना है कि गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ कहाँ अवेलेबल होती हैं, कैसे अवेलेबल होती हैं, क्या क्या काम उनको करने होते हैं। तो ये एक असल में एक सोशल रिफॉर्म का एक तरीका है। और मस्जिद जो है वो मुसलमानों के लिए एक नर्व सेंटर होता है। तो नए मरकज बनाने की जरूरत नहीं है, वो मरकज हैं, मौजूद हैं। तो मुस्लिम जो मस्जिदों की जगह है, खुदा को याद करना, इबादत करना बहुत ज़रूरी है, मगर उसके साथ जब नहीं होती है नमाज तो किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कीजिए, वहाँ क्लास रन करिए, डेवलपमेंट के लिए उस चीज़ को इस्तेमाल कीजिए। वाज़ेह है कि आज से 1400 साल कबल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मस्जिदों का इस्तेमाल नमाज के अलावा तालीमी सरगर्मियों के लिए किया जाता था। मीटिंग में इस बात पर फोकस करते हुए मसाजिद को तालीमी मराकिज बनाते हुए आइम्मा को मजीद बाइख्तियार बनाने का फैसला लिया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्टों और दिल्ली के कुछ बाशिंदों की शिकायत पर दिल्ली अक़लियती कमीशन ने यूपी सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी को नोटिस जारी किया है। शिकायत यह भी मिली थी कि वसीम रिजवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर एक फिल्म बना रहे हैं या बना चुके हैं। इस फिल्म को लेकर मुसलमानों में सख्त नाराजगी देखी जा रही है। इसके पेश नज़र वसीम रिजवी को कमीशन ने नोटिस जारी करते हुए हुक्म दिया कि 2 अक्टूबर तक वो इस फिल्म के ताल्लुक से वजाहत पेश करें। दिल्ली अक़लियती कमीशन ने वसीम रिजवी से कुछ सवाल किए हैं और कहा है कि वो अपना जवाब दाखिल करें। यूपी सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से पूछा गया है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, इस वक्त ये प्रोजेक्ट किस मरहले में है और क्या इस फिल्म के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से इजाज़त ली गई है या इसके लिए दरख्वास्त दी गई है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के इंतखाबात मुनक्किद किए गए इलेक्शन में शेख उमर फारूक को मानू तलबा यूनियन का सदर मुंतखब कर लिया गया। इस इलेक्शन में 5 ऑफिस बेयरर्स के ओहदों के लिए 15 उम्मीदवार मैदान में थे। रायदही के लिए जुमला 4500 तलबा अहल थे। हैदराबाद कैंपस के 2790 तलबा और हैदराबाद के बाहर मुल्क भर में फैले 13 कैंपस में तकरीबन 1800 तलबा शामिल हैं। इंतखाबात पुरअमन तरीके से हुए।
खुमार बाराबंकी का असली नाम मोहम्मद हैदर खान था और तखल्लुस खुमार था। वो 19 सितंबर 1919 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पैदा हुए थे। नाम के साथ बाराबंकी इसी मुनासिबत से था। 19 फरवरी 1999 को खुमार बाराबंकी का इंतकाल हुआ। खुमार बाराबंकी के वालिद भी शायर और चचा भी शायर थे। ये खानदानी हुनर उनकी रगों में भी आया और हैदर खान खुमार बाराबंकी हो गए। आप देखिए तफसीली रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। वही फिर मुझे याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। हैरत है तुमको देखकर मस्जिद में एक खुमार, क्या बात होगी जो खुदा याद आ गया। ये और इन जैसे जमालियाती शऊर से निखरे हुए सैकड़ों अशार जिस मस्त बेखुद शायर के हैं, उसे जमाना खुमार बाराबंकी के नाम से जानता है। उर्दू शायरी का ज़ौक़ शौक़ रखने वालों में जिस कदर शोहरत, मोहब्बत और अकीदत खुमार साहब को मिली, वो कम शायरों को नसीब होती है। उनका असल नाम मोहम्मद हैदर खान था। वो 19 सितंबर 1919 को अवध के शहर बाराबंकी में पैदा हुए और वहीं उन्होंने इब्तिदाई तालीम पाई। शायरी का शौक घर से मिला था। खानदान की रवायत पर चलते हुए खुमार तखल्लुस रख चुके थे और चचा से इस्लाह भी लिया करते। तरन्नुम अच्छा था, शेर अच्छे ढंग से पढ़ते थे, लिहाजा मुशायरों में बुलाए जाने और जल्द मशहूर हो गए। एक बार बॉम्बे के मुशायरे में फिल्मसाज AR कारदार और मौसीकार आजम नौशाद ने खुमार का कलाम सुना और काफी मुतासिर हुए। कारदार उस वक्त फिल्म शाहजहां बना रहे थे और नगमों के लिए अगरचे मजरूह सुल्तानपुरी की खिदमत हासिल कर चुके थे, मगर खुमार साहब से भी उन्होंने फिल्म के कुछ नगमे लिखवाए, जिन्हें KL सहगल और परी चेहरा नसीम बानो ने गाया और ये गीत काफी पसंद किए गए। इसके बाद खुमार साहब ने कई फिल्मों के गीत लिखे, जिनमें दिल की बस्ती, रूपलेखा, आधी रात, रुखसाना, के की फिल्म हलचल, शहजादा, मेहंदी और साज और आवाज वगैरह शामिल हैं। फिल्म बारादरी के तमाम गीत उन्होंने लिखे जो आज तक मशहूर हैं। के की आखिरी और नामुकम्मल फिल्म मोहब्बत और खुदा के भी तमाम गीत उन्होंने ही लिखे, मगर ये खुमार साहब की भी आखिरी फिल्म साबित हुई। खुमार साहब ने जिंदगी भर गजल का साथ नहीं छोड़ा। तगज़ुल उनके लिए शायरी का इस्म आज़म था। ज़बान की सादगी और बरजस्तगी के साथ फिक्र और एहसास की गहराई उनके अशार की खसूसियात हैं। थोड़े लफ्जों में ज्यादा कह जाते थे। खुमार साहब की गजलों के 4 मजमुए उनकी जिंदगी में ही सामने आ गए थे। पहला मजमुआ आतिश तर के नाम से छपा और दीगर मजमुए हदीस देगरां, रक़्स मैं और शब ताब के नामों से शाये हुए। 19 फरवरी 1999 को खुमार बाराबंकी अपने चाहने वालों के लिए अपनी शायरी का सरमाया छोड़कर अपने मालिक हकीकी से जा मिले, लेकिन खुमार बाराबंकी उर्दू वालों की यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए।